Namaskar, Adab, welcome to Teach Tigers, and this yet again Ishwaran, yours truly, at your service for teaching Parabola lecture number 2. So, Parabola के lecture number 2 पे हैं हम, right? We start, in fact, conic section in the last class. I won't say parabola because the entire class went for conic section. मतलब conic section क्या होता है? एक कोन का section करते हैं. Circle is there, parabola comes, ellipse comes, hyperbola comes, pair of lines, condition, delta. Lot of things we have done in center. So एक काम करते हैं. Last class में whatever we have done, एक नन्ना मुन्ना recap we'll do first, and after that we'll go further. Right? So a recap required. We should know from where we are. We should know at what place we are, and we should know where we want to go. This all three elements you will find in our classes, right? So let us come back. We had a definition of conic. Yes, all of you must be remembering. And then we had the general equation of second degree. याद दिलाते हैं. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2f5 plus c is equal to 0. This was general equation of second degree. And then different condition, we had something called delta, right? Delta was abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square, right? So we had two conditions, when delta is equal to 0 and when delta not equal to 0. When delta is equal to 0, we have pair of lines. When delta not equal to 0, we compare h square with ab. If h square is equal to ab, h square greater than ab, h square less than ab, we have parabola, hyperbola and ellipse, right? So these elaborate form में किया था. And then even if there is a conic, how to find the center of the given conic? It was not the formula of the center. If delta is equal to 0, this is the formula for the intersection of two given lines. So याद है हाई फाई बड़ा घर हो गया आलतू फालतू छतरी टाइप का एक कॉन्सेप्ट हमने लिया था. सो सेंटर ऑफ दिस कॉनिक वॉज HF minus BG divided by AB minus H square, HG minus AF divided by AB minus H square. So this we have taken, right? ये हम ले चुके हैं. So this was a small recap. So आज हम क्या करेंगे? Right? So let us see that. Today's big definition of parabola. We'll enter the dragon, right? Parabola के अंदर आ जाएंगे हम. And then standard equation, right? Standard equation क्या है जिस पे हम ज़्यादा काम करेंगे? I'm not saying that remaining equations are not there, so we'll learn that too. But standard equation we have to. And then some other forms. That means in standard equation we have parabola opening on the right, parabola opening on the left, parabola opening the top, bottom, the vertex is 0, 0, if it is alpha, beta, वो सब क्या है? We'll study that. So माता रानी का नाम लेके with lot of enthusiasm, let us start today's class, that is parabola lecture number 2. So definition. Parabola का definition conic section से आता है, right? Definition of a parabola comes from conic section. So obvious there was a point and there was a line. So conic section definition कैसे आता है बेटा? Remember how the conic section comes? So it is based on the point and a line. There is a point which is x1, y1. Alpha, beta भी ले सकते हैं. There is a line called ax plus by plus c is equal to 0, right? So अगर आप इस point को s ले लेते हो, which is easy for all of us. So any point in locus you can take as p, x, y. So ps और pm ये जो ratio है, there is always a constant, and this constant is called exactly eccentricity. इसे हम कहते हैं eccentricity. स्पेलिंग यार ठीक है, eccentricity, right? We call it eccentricity. E. So E greater than 1 में आपका hyperbola होता है, E between 0 and 1 में आपका ellipse होता है, obvious E is equal to 1 में आपका parabola होता है. तो एक काम करते हैं, definition को rephrase करते हैं. When E is equal to 1, we have PS is equal to PM. मतलब ये कुछ ऐसा झोल है, it is such a kind of creature that the distance from S is same as distance from the line. That means the point will be given to you, the line will be given to you. All of you are there. The point will be given to you and the line will be given to you. Parabola is the locus of all the point which moves such that the distance from the point is equal to distance from the line. एक काम करते हैं इसको और
एलॉबरेटली करते हैं। लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कमा बीटा, आपको दिया है। लेट दिस लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, राइट। लेट दिस पॉइंट बी पी, राइट। ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि ये डिस्टेंस बच्चे राजा और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। पी एस इज इक्वल टू पी एम, आर यू गेटिंग मी? पी एस और पी एम दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। एक काम करते हैं, लेट अस, दिमाग है थोड़ा बहुत, यूज करते हैं उसको। तो और कहां पी मूव करेगा? ऑब्वियस पी कैन नॉट बी हियर बिकॉज पी यहां पे आ जाएगा, तो पी एस एंड पी एम कैन नॉट बी सेम। सो ये ऊपर जाएगा, ऐसे होगा। सो ये पी एस ये पी एम सेम होगा, राइट। इट कैन बी हियर, थोड़ा इस तरफ, पी एस इज इक्वल टू पी एम, राइट। इन दोनों के मिड पॉइंट पे आएगा, राइट। पी कैन बी हियर, पी कैन बी हियर, पी कैन बी हियर, राइट। सो आप इसे जोड़ेंगे जैसा, राइट। अगर ये ऊपर है तो नीचे भी होगा, पी एस इक्वल टू पी एम इसका। सो यही एक्सेस कहलाता है, दिस इज अ पैराबोला, right? So locus of all the point which moves such that distance from a fixed point is equal to distance from a fixed line is the definition of one kind of conic that we call as parabola, right? So parabola का definition आपका कैसा आएगा? कुछ ऐसा, the locus of a point which moves in a plane such that it is distance from a fixed point equals its distance from a fixed line, then that conic section becomes parabola, right? E is eccentricity is equal to 1 for a parabola. Parabola के लिए बच्चे राजा eccentricity is always is equal to 1 रहती है eccentricity, right? So obvious, जिस point से वो distance में है, एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। ये आपका point S, ये आपका line L is equal to 0, right? ये point P ऐसा है कि PS is equal to PM है, राइट। पी एस इज इक्वल टू पी एम। मैंने कहा लोकस कैसे जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट, तो कुछ ऐसा, राइट। फिर इसको जोड़ दो, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, राइट। सो ऑब्वियस ये जो लाइन है वी कॉल इट डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकसवा, फोकस, राइट, समवॉट लाइक दिस। सो पॉइंट एस इज कॉल्ड अ फोकस, पॉइंट P is any point in locus, you can take it x comma y, and directrix is any equation you can take ax plus by plus c is equal to 0. So you want to find the equation, take x comma y, इसको लेते हैं alpha comma beta. I'm not saying this is axis, ये parabola का equation है, right? So ps is equal to pm, ps is equal to pm, right? So what is ps? Root of x minus alpha the whole square प्लस y माइनस बीटा द होल स्क्वायर, समझे, राइट, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस लाइन, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, यू कैन टेक द रूट ऑफ, यू विल गेट सम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. अगर फिर सॉल्व करेंगे ना स्क्वायर करने के बाद कुछ ऐसा होगा, x माइनस एल्फा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी द होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रूट हट गया ना, इसको इधर लेके आइए, ओपन कर दीजिए, यू गेट जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री. ऑब्वियस, पैराबोला इज कॉनिक. इन सबको समेशन कहां पे होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कैन बी अ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैन बी अ सर्कल, कैन बी अ पैराबोला, कैन बी एलिप्स, कैन बी हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है. जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डिवीजन था ना. फिर डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो पैर ऑफ लाइन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो कॉनिक. कॉनिक में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0. फास्ट तो नहीं बोल रहा, सर्कल का है, रिमेंबर, right? So in this way we can go for the equation of parabola, right? So एक काम करते हैं, पैराबोला का एक स्पेसिफिक केस लेते हैं. पैराबोला का एक स्पेसिफिक केस लेते हैं जब उसका वर्टेक्स 0 0 हो. देखिए here I said it is any point, any focus and any directrix. और ऑब्वियस वर्टेक्स कहीं पे भी आएगा. वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इज नथिंग बट फोकस और लाइन, यहां जो परपेंडिकुलर डाला इसका मिड पॉइंट. तो कहता है ये वर्टेक्स 0 0 है और एक्सिस एक्स एक्सिस है. चेक. Specifically, when vertex is 0 0 and axis is x axis. So vertex आपका 0 0 ड्रॉ करना, vertex 0 0
समझ में आया? और एक्सेस इज एक्स एक्सेस, तो ये इसका एक्सेस है। ऑब्वियस फोकस शुड लाई ऑन, ये वर्टेक्स है, फोकस यहां पे लाई करेगा। कहां पे बेटा? कहीं पे भी पॉइंट एस फोकस दे लो, राइट? अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? सो ये एक्स एक्सेस है। सो ऑब्वियस पैराबोला कैसा होगा बेटा? कुछ ऐसा, बिकॉज वर्टेक्स इज हियर, दिस एक्सेस दिया है भाई, वर्टेक्स इज 0 0 एंड एक्सिस एक्स एक्सेस। तो ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। द सेम वर्टेक्स 0 0 एक्सिस एक्स एक्सेस कैन बी लाइक दिस, वर्टेक्स 0 0 एक्सिस एक्स एक्सेस कैन बी लाइक दिस, तब फोकस यहां आ जाएगा एज दैश दैट। सो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, आई एम टेकिंग दिस वे, राइट? राइट ओपनिंग कर रहा हूं, राइट? सो because ये focus lie on x-axis, let us take the focus as a comma 0, and needless to say, because I'm taking a on the right side, a is positive. All of you are there? So एक काम करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, राइट? राइट, ये आ गया। सो एक्सेस ये। अब जरा बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, पैराबोला को ध्यान से पकड़ना है कि पैराबोला है क्या। सी आपको फील करना है, जैसे शाहरुख खान की फीलिंग होती है ना, आपको फील करना है। अच्छा, तो यहां पे आपका फोकस है, सी दिस इज पैराबोला, ऐसे ही बनाते हो ना, दिस इज पैराबोला, ये फोकस है, राइट? तो ऑब्वियस मैंने बताया था कि यहां पे कोई पॉइंट लोगे, ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस अगर ये आप v ले लोगे वर्टेक्स और ये L ले लोगे, VF और VL भी सेम होगा डायरेक्ट्रिक्स के तक। सो अगर ये VSA है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर जाएगा, विल बी ऑन दिस साइड। इफ दिस a, 0, दिस शुड बी -a, 0। Am I correct? Feeling. Vertex is a midpoint of focus and intersection of directrix and axis. डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है और फोकस है, उसका मिड पॉइंट इज अ वर्टेक्स। फील। That means if you're standing at focus, you jump one, you will be on vertex. Same jump you do, you will be standing on intersection of the axis and directrix, right? दोबारा देखें, देखिएगा। I can teach you 100 times if you want to see. This is the focus. This is directrix. I know that parabola अगर बनाओगे, locus of any point this is equal to this. So definitely यहां पे लोगे, so ये थोड़ा गलत बनाया, ये इक्वल होगा vertex and this is directrix और ये axis का intersection, इसको L ले लो, so LV is equal to VF. So vertex is the midpoint of focus and the intersection of the axis with directrix. लिख लीजिएगा, नोट बना के कहीं पे, नोट बना के कहीं पे लिख लीजिएगा, राइट? सो नोट नंबर 1 is vertex is midpoint of focus and intersection of किसका बेटा? डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पता है हमको, बट सिर्फ ले लो, कोई गलती नहीं है। सो सेकेंड, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सो ये दो जो आपने लिए हैं नोट, इसको आप अगर ढंग से लोगे, सो नोट नंबर 1, राइट? सो पहला क्या है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सेकेंड नंबर क्या है आपका? वर्टेक्स किसका मिड पॉइंट है? इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विथ एक्सिस। तीसरा आएगा, बता दूंगा। सो कुछ ऐसा होगा जो आपने अगर बनाया है, this was the vertex, origin is the vertex now. So I am thinking that it is opening on the right side, so I took focus here. Because x-axis, focus will be a, 0. Because ये ऐसे है, तो this will be -a, 0. So if I take, obvious a is positive, so parabola कुछ ऐसा होगा,
राइट, एंड डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा होगा, राइट. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, so this will be x is equal to minus a or x plus a is equal to 0, right. So this is a standard parabola, specific parabola in which your entire class 11th will be running here. CBC part, JEE part में इसी से आता है लेकिन थोड़ा हाई लेवल आता है. We'll do that anyhow, we are there to do all. So एक पॉइंट लिया, obvious. अब when the vertex is 0 0 on x axis we got this stat. Obvious a हमने डिड्यूस किया है, a can be changing, but I taken this opening on the right side, it can be open on the left side, we'll do that. So ये a positive. Now क्या आएगा? Take any point in locus p, right? I know that ps is equal to pm, right? I know that ps is equal to pm. तो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा? Let us see. मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, right? देखिएगा. So ये आपका आ गया p, ये आपका आ गया s, ये आपका आ गया m. So I know that ps is equal to pm, right? When ps is equal to pm, ps कितना है? Root of x minus a the whole square plus y square. I taken p as x comma y, or pm is equal to modulus of, substitute this point, x plus a divided by root of 1. So mod है ये pm. So ये आ गया आपका root of x minus a the whole square plus y square is equal to mod of x plus a, square both sides. X minus a the whole square plus y square is equal to x plus a the whole square, इसको उधर ले जाओ. Y square is equal to x plus a the whole square minus x minus a the whole square, आ जाएगा 4ax. तो आपका इक्वेशन ये आया, y square is equal to 4ax. Obvious a is positive. A is positive, right? तो क्या आया हमारे पास? I'll just show you. क्या आया हमारे पास? If there is a parabola whose vertex is at origin and whose axis is x-axis, if it is right opening a greater than 0, डायरेक्ट्रिक्स विल बी x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट. सो इसका फोकस क्या लिया हमने? a कमा 0. डायरेक्ट्रिक्स क्या लिया? x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट. a को क्या लिया? पॉजिटिव. इक्वेशन क्या बना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर a ग्रेटर देन 0. ये बहुत ध्यान रखना बेटा, a ग्रेटर देन 0, बिकॉज ओपनिंग राइट साइड है. a कैसे ग्रेटर देन 0? आई टेकन a ऑन द राइट साइड, सो a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. ऑल ऑफ यू आर देयर, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. कैसे आया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो समवॉट लाइक दिस वी हैव डन, राइट. एक काम करते हैं, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो हमने भी बनाया इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला दैट विल बी स्टडीइंग. बाद में a को नेगेटिव भी लेंगे या माइनस a करेंगे, सो पैराबोला उस तरफ खुलेगा और डायरेक्ट इस तरफ आ जाएगा. विल डिस्कस दैट. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इस पैराबोला का फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट एंड व्हाट इज लैटिस रेक्टम. विल डिस्कस दैट. सबका डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट वंस, right? So सबसे पहला axis. What is axis in this case? I know that, sir, you told me axis keep feeling low. Axis is nothing but a line which divides the entire curve into two symmetric parts. Yes. Sir, axis is perpendicular to directrix passing through focus. Yes. मैं मना तो ना कर रहा हूं. But for this particular equation, what is the equation of axis? Okay? तो एक काम करते हैं. So y square is equal to 4x आया, तो उसका एक्सिस क्या है? एक्सिस इक्वेशन ऑब्वियस. एक्सिस इज दिस, एक्सिस एक्स एक्सिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0. सो एक्सिस बना आपका y इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस, राइट. इसका ऑब्वियस वर्टेक्स भी है, राइट. नेक्स्ट का वर्टेक्स देते हैं. वर्टेक्स क्या हो बताइए? इसका वर्टेक्स वाज 0 0. सो दो चीजें बन गई बेटा, बार बार लिखूंगा याद दिलाने के लिए. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का आपका एक्सिस आया, x एक्सिस which can be taken as y is equal to 0. इसका वर्टेक्स आया, इट इज 0,0, दैट इज ओरिजिन. यही लेके बनाया था, राइट. ठीक है ना. ये दो चीजें पढ़ ली. तीसरी चीज
डबल ऑर्डिनेट. ओके, डबल ऑर्डिनेट क्या है? डबल ऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. सो इन दिस केस दीज आर द डबल ऑर्डिनेट्स, राइट? सो डबल ऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट y is equal to, sorry, x is equal to constant for constant greater than 0, because 0 को छोड़ के ये 0 0 है, 0 को छोड़ के बाकी सारा डबल ऑर्डिनेट है. This cannot be negative, मतलब c cannot be negative. So x equal to c, any c is double ordinate. So पहली चीज क्या पड़ी? Axis which was y is equal to 0. दूसरी चीज क्या पड़ी? Vertex which is 0, 0. तीसरी चीज क्या पड़ी? Double ordinate. So it should be perpendicular to x-axis, should be parallel to y-axis. X equal to constant for constant greater than 0. Y constant greater than 0. अगर ये ऐसा पैराबोला है, this origin x equal to c माइनस में इधर आ जाएगा, 0 में इधर आ जाएगा. तो 0 भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. Should be always positive. So this is the third thing we have learned. So let us go further. So अब एक काम करते हैं, इसमें डबल ऑर्डिनेट बनाते हैं. I form this double ordinate, this is double ordinate. एक डबल, अगर ये फोकस है, एक डबल ऑर्डिनेट आपका फोकस से पास करेगा. एक डबल ऑर्डिनेट आपका फोकस से पास करेगा. उसे क्या कहते हैं? द डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम. द डबल ऑर्डिनेट दैट पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम. इफ एट ऑल वी वांट वी कैन टेक इट फर्दर. सो अगर आप इसे L लेते हैं, इसको L डैश देते हैं, ये फोकस है, तो L डैश इज लैटिस रेक्टम, राइट? आपके पोर्शन में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी है और एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी है. निकाल के देखते हैं, देखिएगा. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम? लाइन ही तो है. अबे ढक्कनो, लाइन ही तो है. लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम. सो हो गया x इज इक्वल टू a. मुझे L और L डैश चाहिए, तो आई सॉल्व दिस विद दिस. सॉल्विंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पुट इट हियर. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a. सो x तो a है, तो L बन गया x इज a, 2a. L डैश बन गया a, माइनस 2a. ऑब्वियस, ये लेंथ, ये आपका 2a है, ये भी 2 है, a पॉजिटिव है. सो लेंथ बन गया आपका 4a, ये लेंथ. सो आपकी दो तीन चीजें आई. फर्स्ट इज एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, a, 2a and a, minus 2a. Obvious, length of lattice rectum, that is 4a. Ends of lattice rectum, that is a, 2a, a, minus 2a. All of you are there, right? So इसके साथ ही axis किया. What is axis? X axis या फिर y is equal to 0. What is vertex? 0, 0. What is double ordinate? It is x equal to c for c greater than 0. ये सारा किसके लिए है? y square is equal to 4x के लिए. a क्या है? greater than 0. जितनी चीजें पढ़ रहे हो ढक्कनों, दिमाग में डाल लो कि all of these are true only when the equation is y square is equal to 4x. a तो greater than 0 होगा. Fine, understand? When the equation, because there are many other kinds of parabola which will be coming in other exams, but suddenly you start reciting this formula. I'll guarantee you, I'll prove that कि आप पैराबोला चेंज भी करूंगा तब भी ये यूज करोगे. टेक केयर ऑफ दैट. दिस इज सबसे पहला रूल. आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, टुडे वॉट एवर वी आर स्टडीइंग, ऑल ऑफ देम आर ट्रू ओनली फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. धरती में स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. वैसे ही दिस ओनली फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट? So we have done all these things. Let us go for focal distance. What is the focal distance? Parabola is given to you, right? Parabola is given to you. Focus, obvious, focus भी given to you. इसी की बात करें, मतलब focal distance concept is true for all. What focus distance we'll be finding out will be for this parabola. Focal distance is, अगर parabola स्पाइडरमैन के लिए ऐसा भी है, तो ये focus है, right? So any point of the parabola, ये distance is called focal distance. एक radius होता है ना, circle है, any point from the center is called radius. So take any point on the parabola P, right? This is focus S. So PS is the focal distance. Distance of the point on the parabola from the
फोकस, ऑब्वियस मेरे मुंह से कॉरस्पॉन्डिंग फोकस निकल रहा था, सो वो एक्चुअली इलिप्स में होता है, बट हियर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला विद द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। और हमने पढ़ा है यहां पे व्हाट इज पीएस हियर, व्हाट इज पीएस? इफ दिस x comma y, this a comma 0, what is PS? But you don't find distance formula here, come out from simple coordinate geometry or in conic sections. So PS is same as PM. So PS जो है वो PM के इक्वल है, तो don't find distance formula, find this. ये कितना है बेटा? X एब्सिसा, ये कितना है? ये x इक्वल टू माइनस ए है, लेटर सकते में ना, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है ना, दिस ए एक्स प्लस ए, मॉड लेना ले लो, राइट, दिस व्हाट। सो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, PS is the focal distance, but I can take this focal distance, focal distance of P is PS, तो ये is equal to PL है, is equal to mod of x plus a है। So you can set x1 y1 तो x1 प्लस ए करके आ जाएगा, राइट, फाइन। सो एक काम करते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ते हैं, तब तक यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो व्हाट आर द फोकल डिस्टेंस, क्या क्या था हमारे पास? एक्सिस लिया, और क्या लिया हमने? वर्टेक्स लिया, और क्या क्या लिया हमने? वी टॉक अबाउट डबल ऑर्डिनेट, और क्या लिया हमने लैटिस सेक्टम के बारे में पढ़ा, और क्या लिया हमने? फोकल डिस्टेंस के बारे में, और क्या लिया? अब ये सारा का सारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये भी लिया, भूलने का नहीं। एक्सिस y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस, वर्टेक्स 0 0, डबल ऑर्डिनेट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, लैटिस सेक्टम इज लेंथ, एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टम a कमा प्लस माइनस 2 है, लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम 4a, याद है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 4a, राइट। फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a। देखिए इसको, विल गो फॉर द अदर फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला, जस्ट यू गो थ्रू इट वंस। सो विल गो फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, राइट। मैंने बताया था आपको y square is equal to 4ax we have done by keeping something in mind. We kept in mind that parabola is y square is equal to 4ax, correct ना? Parabola is y square is equal to 4ax and exactly उसका a पॉजिटिव है। So हमने जो पैराबोला लिया, what we took was y square is equal to 4ax for a positive, right? This was obvious, focus directors are so important, right? But at the same time, when you go for y square is equal to minus 4ax, होगा क्या? यहाँ पे दो चीजें हैं, either you take a as minus a और x as minus x। इसमें either you take x as minus x और a as minus a, बात वही है, मतलब होगा क्या? y square is equal to minus 4x में, अब focus it is y square is equal to 4ax, are you getting me? बच्चे a इज पॉजिटिव यार, सो माइनस ए नेगेटिव, सो फोकस हो जाएगा। पहले इसमें था फोकस a, 0। एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हुए करते हैं, आपको ज्यादा मजा आएगा। कंपैरिजन करते हुए करते हैं, व्हाट वी हैव डन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट, ऐसा था। अब ये आ जाएगा, यही है ना, a की जगह माइनस है। अब फोकस हियर वॉज a, 0, हियर विल बी माइनस a इज पॉजिटिव, या दोनों केस में तो माइनस a नेगेटिव, तो ये यहां आ जाएगा। फोकस इज माइनस a, 0, बिकॉज हियर वॉज a, 0, a की जगह माइनस a आया ना, दैट इज 1। सेकेंड इज वर्टेक्स तो वही रहेगा, देयर इज नो चेंज, वर्टेक्स वही। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए था, अब a की जगह माइनस ए हो जाएगा, x इक्वल टू a, राइट, डायग्राम ऐसा होगा। सो फोकस माइनस ए, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, राइट, वर्टेक्स सेम, नो चेंज, वर्टेक्स 0, 0। सो फोकस a की जगह माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए था, x इक्वल टू a, वर्टेक्स 0, 0। बाकी प्रॉपर्टी वही है, इसका इमेज ये पड़ा। अबे आजा,
इसका इमेज ये पड़ा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस टेंजेंट एट वर्टेक्स दोनों में सेम है। यहां भी टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस है, यहां भी टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट, दोनों केस में सेम है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यार लेंथ ऑफ लेटस में ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सो ये यहां पे एंड लेंथ था 4a, सो यहां भी लेंथ 4a ही होगा, देयर इज नो चेंज। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a बिकॉज मॉड लेना पड़ेगा, a पॉजिटिव है, राइट। एंड्स यहां पे था a, +2a और नीचे था a, -2a, यहां पे क्या हो जाएगा -a, 2a -a, -2a, एम आई करेक्ट? ऐसे करके हो जाएगा, राइट। एक काम करते हैं, इसको क्लीनली लिखते हैं, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, उसके बाद फटाफट बाकी फॉर्म में जाएंगे, राइट। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, फोकस -a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x is equal to a, vertex 0,0, vertex is 0,0, latus rectum, latus rectum L ऊपर वाला -a, 2a, L dash is -a, -2a, right? L dash length is 4a. These are the stats of y square is equal to -4ax. मैं हट गया हूं, आप पॉज करके आराम से लिखिएगा, right? I'm guaranteeing you if you attend any of my classes, either parabola, teacher की कोई भी क्लास अटेंड करें, आपको फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा, that's a guarantee. Take care of that, right? So मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो आई डोंट नो, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वी हैव डन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ हाउ टू गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये दिया है, इसका ग्राफ ऐसा था, दिस ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। अब ये इससे ये कैसे आएगा? सो सबसे सिंपल है, सर एक्स और वाई को फ्लिप फ्लॉप कर दो, एक्स की जगह वाई का डालो, वाई की जगह एक्स का डालो, मजा आ गया यार, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। सो होगा क्या, जो एक्स एक्सिस कर रहा था अब वो वाई एक्सिस करेगा, द वन विच इज डन बाय वाई एक्सिस, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस, नीडलेस टू से a is greater than 0, should be a is greater than 0, focus was a, 0, here it is 0,a, directrix was x equal to -a, directrix now is y is equal to -a, and vertex is again 0,0, there is no change, right? Latus rectum is a double ordinate passing through focus, so length of latus rectum लेते हैं, L dash, ये हो गया L, ये हो गया L dash is 2a, a, अरे ya है भाई, ये हो जाएगा -2a, a, obvious size is same, so L dash is 4a, so यहां पे स्टैट्स लिख लेते हैं इसका, so vertex क्या हो जाएगा 0,0, there is no change in vertex remains same, right? and then उसके बाद क्या आएगा आपका focus 0,a, directrix y is equal to -a, then we have even length of latus rectum, L is L or a, 2a, a, L dash is -2a, a, गलत तो नहीं कर रहा, या ओके, L dash is 4a, I don't think so, इसके अलावा tangent at vertex, now it's x axis, right? ठीक है ना, this is x square is equal to 4ay, right? Hope all of you understand. Let us go for next, x square is equal to -4y, so simple, एक काम करते हैं,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऐसा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay ऐसा आएगा. दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. सो वर्टेक्स इज 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a. दिस इज 0 कमा माइनस a. लेटस रेक्टम l l डैश, l इज नेगेटिव साइड में है, माइनस 2a कमा माइनस a. ये हो जाएगा 2a कमा माइनस a. ऑब्वियस l l डैश इज 4a. साथ लिखें, देखते हैं बेटा. वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 कमा माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a. ends of latus rectum, ends of LR plus minus 2a comma minus a. Length of LR, सबका 4a है यार, सबका 4a है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका 4a है. एंड ऑब्वियस tangent at vertex, it is x axis. कुछ और तो नहीं है ना. This is what we have. राइट एक छोटी समरी इन सब के लिए ग्राफ के साथ, समवॉट लाइक दिस. देख लीजिएगा, अगर आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a कमा 0, एक्सेस इज y इज इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस a, लेटस रेक्टम एंड्स आर a प्लस माइनस 2a. अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो वर्टेक्स वही रहता है, a की जगह माइनस a आ जाता है, एक्सेस भी वही रहता है, x एक्सेस, x इक्वल टू माइनस a की जगह a आ जाएगा, a की जगह माइनस है ना, सो a की जगह माइनस है. तो आप कहेंगे सर यहां भी आएगा तो माइनस प्लस सेम एज प्लस माइनस है, फर्क नहीं पड़ेगा, a की जगह माइनस है, ऑर्डिनेट सेम. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दोनों x की जगह y की जगह x, तो ये जो a कमा 0 होगा वो 0 कमा a हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, x की जगह y आ जाएगा और ये आपस में फ्लिप फ्लॉप कर जाएंगे. वही हुआ, x की जगह y, y की जगह x. एंड देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4ay, या तो इसको ले लीजिए या फिर इसका उल्टा करके नेगेटिव ले लीजिए. 0 0 का 0 0, माइनस a का 0 कमा माइनस a, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a का y इज इक्वल टू a, इसका एग्जैक्टली फ्लिप. राइट, तो 4 ग्राफ बने आपके पास. सो लेट अस सी, 4 ग्राफ बने. दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस सेकेंड ग्राफ, plus 4ax minus 4ax. This third graph, this fourth graph. That's it. Right? ये 4 ग्राफ देखना तो ऑब्वियस यहां पे फोकस यहां होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, फोकस यहां होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, फोकस इज हियर, डायरेक्ट्रिक्स हियर, फोकस इज हियर, डायरेक्ट्रिक्स इज हियर. You can go ahead, yeah, everything great. Right? This is how it goes, and this is a small revision. Right? All of you got it? ठीक, राइट. सो इसको मग्गा मार लीजिएगा, बड़ा मग्गा दिया आपको, मग्गा मारिएगा, डोंट फॉरगेट इट. राइट, एवरीथिंग ऑफ दिस शुड बी रिमेंबर्ड, सब याद होना चाहिए इसका. मग्गा मार लो, नोटवा, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो दैट्स इट, द एंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चर 2. So I'll go and come back with the application part of lecture 2, right? Till then, keep revising this. इसको revise करिएगा, just revise this, right? I'll go and come back.